वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है। अच्छा, इस क्लास में इन दिस क्लास वी विल बी डूइंग सम रिवीजन फॉर द फाइनल एग्जाम। ठीक है, हमारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए और वी डोंट नो के वेदर देयर विल बी एनी क्लास नेक्स्ट वीक और नॉट। आई हैव आस्क्ड द क्लास एडवाइजर बट because we don't know that there will be any extra class or any class next week or not. If there is a class, we will announce on the classroom page. Okay, so coming back to the final exam, how do you prepare for final exam? So in this the syllabus for final exam is from lecture number 16 to lecture number 30. That's 30. Okay, so if there are few more things related to that, such as from lecture number 1 to 15, we will announce on the class portal. But the as per your SOPs, अच्छा हाँ, बीच में कोई भी बात पूछनी हो टेक्स्ट लिख के देख लो, मैं बार बार इसको क्या कहते हैं, आई विल बी लुकिंग एट इट, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है फाइनल एग्जाम्स का वो लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर नंबर 30 तक है। ठीक है, अच्छा, व्हाट हाउ टू लुक एट द लेक्चर टॉपिक्स की ये फाइल अवेलेबल है ऑन द क्लासरूम पेज। यू कैन गो देयर एंड सी दी लेक्चर, कौन से लेक्चर में कौन सी चीज़ जो है वो डिस्कस हुई है। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 16 से 21 तक कोशिश करेंगे कि इसकी चीज़ें देख लें, और इसके अलावा if there is any extra class or if there is any class, I will discuss from lecture number 22 to 30 in the next class if there is any class. Okay, but I think यहाँ पे lecture number 16 से 21 तक हो जाएगा. But first is doing that, let me discuss. There will be 4 types of question in your final exam. Okay, 4 types of questions. Number 1 is that you have to write a code or write a program for something. If you're asked to write a code, then you only need to write specific lines to perform some task. You do not need to write include IOStream and using namespace standard, integer main void. You do not need to write that. But if you're asked to write a program, the program means it's a self-contained code, and then you have to write the whole code. You have to write include IOStream using namespace standard, integer main void, and those curly brackets and return 0, which we have discussed so many times in the lectures. Okay, so if you're asked to write a program to do something, for example programs, or you can for to practice for the final exam, you can see the code files which I have shared with you for lecture number 16, 17, 18, and I think there 18 was shared separately. Maybe I will check it out. And then 19, 20, from lecture number 16 to lecture number 30, you have to look at the CPP files which we have discussed. For more practice, if you have time, which you probably do not, you can see the assignment which we have shared, even though you only have to do just 3 questions in your assignment. But in the final exam, it will be helpful if you can let me look at the assignment. I mean, if you can solve these questions, or about there are I think 13 questions. So except for question number 7 and question number 8, you should be able to solve, and maybe question number 10, you should be able to solve all of these questions. I'm not saying that the paper would be from this assignment, but assignment is itself a very good practice to prepare for your final exam. Your class representative was saying that whether we can extend the date for this assignment. Unfortunately, no, because we have to display the sessionals on 10th of September. So we need about 2 or 3 days to, I mean, this is like 7 September, 11 p.m. So we have like 2 days to check your assignment and post the result for your sessionals. Okay, now coming back to the questions, or coming back to the practice problems, in lecture number 16, we discussed the scope of variables, and we discussed some practice problem and operator precedence and the increment and decrement operator. So I'm going to open up these files, and I'm going to discuss a few things which is important. That if you have declared a variable, or if you're using a variable which is not declared, so obviously there is an error. Okay, oh sorry, before discussing that, actually I'm taking the class from some other place, so I'm pretty much out of sync right now. But there are 4 types of question in your exam. You are either asked to write a code for some to do some task. You just need to write those lines of code
and you don't need to write the main function. If you're asked to write a program to do some task, you have to write the whole program. Okay, then there will be a question, or there could be questions of you are given a code and you are asked to figure out what would be the output of this code. Okay, you might be given some code such as you have given output, so you are given something like this, and you are asked that what would be the output of this code. So if you, because you won't have the facility of a compiler while attempting the final exam, so you have to think like a compiler and figure out what the output of that code would be. And the next type of question would be that find the error and correct an error in some code. You would be given some code. There could be some syntax error, there could be some runtime errors, there could be some compile time errors. Okay, so you need to figure out what those errors are. Maybe semicolon is missing, maybe a double quote is missing, or maybe there could be some kind of an infinite loop going on there, or the condition is never false, or there will be no break statement in the switch case statement, something like that. So you would be given a code and you need to figure out that what the error is in the code and how can you remove the error. Then you have to write the code with the error removed. Okay, that's a third type of question. And the fourth type of question is that you would be asked to find, or you would be asked to figure out the value of some variable. Let's say I'm running a simple loop. Let me write a loop. Let's say I'm running a simple loop. I'm not writing the whole thing, I'm writing some condition here. And let's say there is some variable, and the variable is incremented due to something, and and you're asked that what would be the value of this variable at for example, fifth iteration. So you need to figure out that value of some variables or variables in some iteration or something like that. Okay, so there are four types of question. You have to you are asked to write a code of something, or maybe a program of something. You would be asked to figure out the output of some code. You would be asked to figure out the error and correct the error if there is any. It is possible that the code contains no error at all, so it is also possible. And in the last question, you might be asked to figure out what would be the value of this variable in so many iterations. To practice that, you can use the you can use the debugging mode of the compiler, which we have used in the loops topic. Okay, let me see whether there are any questions. अच्छा, क्या पूछ रहे हैं ताहा? इन द असाइनमेंट देयर इज अ क्वेश्चन टू मेक अ प्रोग्राम फॉर यूनिट कन्वर्जेंस, देयर आर so many यूनिट्स ऑफ लेंथ एरिया वी वुड इंक्लूड। नहीं ताहा, उसमें दो तीन ही होंगे, नॉट मच। ठीक है, दो तीन ही होंगे, ज्यादा नहीं। मतलब जाहिर है वो तो हजारों तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स आर देयर। सो उसमें से दो तीन ही गिवन होंगे, और आपको यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट कन्वर्जन छोड़िए, लेट्स से इफ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट kilograms into pounds, so you need to multiply kilograms, I think, by 2.2, if I remember it correctly. But if in exam, if there is some kind of a question like that, you would be given the conversion factor. अच्छा, अतरुल्लाह कह रहे हैं, so what do you mean by formatted output? भाई formatted output का मतलब, अगर आपका वो उसका सवाल है, यानी कि उसका क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल वाले में अगर कोई पूछ रहा है भी 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो आपको ये डिस्प्ले करना है 5x 4x 3x 2x 1 इक्वल्स टू 120। आपको ये डिस्प्ले करना है, आपको सिर्फ 120 डिस्प्ले नहीं करना, आपको जो है ये पूरा डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसका मतलब ये मतलब है फॉर्मेटेड आउटपुट का। मिड्स रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। देखो मिड्स के जो पेपर हैं सर इकबाल अजीम चेक करें, वो ऐसा ऐसा एक एक पेपर चेक करें, पता नहीं 200-300 पेपर्स हैं, तो जब वो चेक करेंगे तो वही बताएंगे। पेपर उन्होंने बनाया था। फाइनल पेपर का बता तो रहा हूँ बेटा, ये जिब्रान, ये फाइनल पेपर का पैटर्न यही है, 4 तरह के सवाल होंगे, सारे सवाल करने हैं, कोई चॉइस नहीं होगी, और वही 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में नंबर कम है इसके, नंबर आई थिंक 30 है। सर असाइनमेंट इज रियली टफ, दोज इंक्लूड, भाई असाइनमेंट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। ओके, आप सिर्फ उस पे फोकस करें जो हमने सॉल्व प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करी हैं, वो अभी हम डिस्कस करें थोड़ी देर में। देयर इज अ, हाँ बिल्कुल, ये हफ्सा का सवाल है कि क्या हम जैसे प्रोग्राम, क्या बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर्मेटेड आउटपुट है, उसमें भी एक लूप चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो
सर अगर मोहम्मद अली अवान सर लेक्चर 16 से 30 तक कर लें तो फाइनल की तैयारी कंप्लीट है। बिल्कुल है। अगर कोई इसके अलावा कुछ आया, क्योंकि एज पर योर एसओपी वीक नंबर 6 to 10 लिखा हुआ है। अब यार 10th वीक में क्लास ही नहीं हुई थी तो ये तो, लेकिन फिर भी हम लोग 10th वीक लिखा हुआ है तो लेक्चर नंबर 30 10th वीक में हुआ। अगर 16 से 30 से अलावा कुछ आया तो हम क्लासरूम में अनाउंस करेंगे कि लेट्स से अगर वो, क्योंकि अभी तक ना वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का सवाल मिड में नहीं आया था, तो अगर वो आने लगेगा तो हम बता देंगे कि भाई लेक्चर नंबर ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा, असाइनमेंट भी टफ है यार। असाइनमेंट को कोई भी मैंने ये कब कहा है कि आप सारे सवाल करें? यू कैन जस्ट डू 3 क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल होंगे लाइक यू हैव टू आस्क, मे बी आस्क टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, वो हम बना चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर, जो जो हमने प्रॉब्लम्स करी हैं, अगर आप वही कर लेंगे आपके लिए काफी है, ठीक है। असल चीज अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? फैक्ट इनटू, हाँ फॉर्मूला अप्लाई करें तो डायरेक्ट फैक्टोरियल का आंसर आता। हाँ हाँ तो ठीक है ना, लेकिन एक और लूप चलाओ जिसमें वो सारे नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो। ये एक स्टूडेंट ने कर भी लिया। क्विज 2 and 3 इन 1 डे, यार क्या करें, वो मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं यूनिवर्सिटी आके इंटरनेट चला रहा हूँ, क्या करें। इक्वेशन ग्राफर ये छोड़ दो इसको, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 आपसे नहीं होगा। तो इफेक्टिवली यू हैव लाइक 11 क्वेश्चंस टू वर्क विद, क्योंकि हमारे पास अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर लो तो इक्वेशन ग्राफर वैसे उसकी हेल्प मिल जाती है, लेकिन आपको ग्राफिक्स वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये बन जाता है, कुछ लोगों ने बनाया है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, पेपर में नहीं आएगा ऑब्वियसली। टुमारो क्विज वही सुबह से रात तक, आप कभी सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जल्दी से सवाल कह रहा हूँ, टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। देखें, इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और if you are using a variable without declaring it, obviously there is an error. Now we have declared the variable. This variable is only visible below this line and any code block um, contained in it, any curly brackets contained in it, ठीक है। x equal 22, that is okay, और but y equal 33 it is not declared yet, ठीक है। लेकिन ये जो x है ये मेन के बाहर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। और x इक्वल्स टू 66 यहाँ पे है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली। अब इफ अगर हमें यहाँ पे कुछ सी आउट का स्टेटमेंट लिखता हूँ तो फिर यू आर प्रॉब्ली आस्क्ड टू राइट कि व्हाट वुड बी द आउटपुट, क्या x की वैल्यू 44 आएगी या 66 आएगी। भाई हर नेक्स्ट x का जो स्टेटमेंट है वो पुरानी वैल्यू को ऑब्वियसली ओवरराइट कर रहा है, तो यू हैव टू फिगर आउट कि अगर सी आउट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या सी आउट मैंने यहाँ लिखा हुआ है या सी आउट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द वैल्यू ऑफ x व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो डिपेंड्स के भाई x कहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या थी, और आपने सी आउट की वेरिएबल सी आउट का स्टेटमेंट कहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये मैं लेक्चर नंबर 16-1 डिस्कस कर रहा था। इसमें भी ये इसमें ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो इफ यू आर यूजिंग इंटीजर x इक्वल्स टू 22, तो अगर मैं ये इसको, इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इफ आई एम, देन आई विल बी ओवरराइटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x, ठीक है। बट इफ आई एम यूजिंग दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो जो भी x इसके आउटसाइड विजिबल होगा उसको ये एक्सेस कर रहा है, और ये सिर्फ एक लेवल तक चलता है। तो यहाँ पे वी हैव डिक्लेयर्ड इंटीजर x इक्वल्स टू 11, दिस x इज एक्चुअली अ ग्लोबल वेरिएबल, इट्स विजिबल ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर दिस लाइन, ठीक है। आफ्टर दिस, ऊपर नहीं दायरे, यहाँ पे आफ्टर दिस line is visible all over the place in all of these curly brackets, even within those curly brackets. But if I have declared an integer x equals to 22, that's a new variable, okay. And if I'm using the cout for this, obviously it's going to display x equals to 22 because I'm referring to x. अगर मैं यहाँ पे colon colon लिखता तो फिर that would be f referring to the scope resolution operator है, that will be referring to the x which is visible outside, जो कि ये वाला है 11. तो watch out for this thing. तो जो हम पूछेंगे कि भाई what would be the output of this program, तो ये 16-2 हमारे पास है। 16-3 देख लेते हैं। इसमें वंस अगेन ये सवाल वैसे मिड टर्म में और क्विज में पूछा जा चुका है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इन सम कोड यू माइट बी गिवन लाइक दैट। एक मिनट यार, ये जरा मैं जल्दी से बताना कि मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको, क्योंकि माइक्रोफोन थोड़ा हो रहा है, आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी सवाल देख लेते हैं। क्विज स्ट्रिंग रिवर्स, हाउ कैन वी टेक द, यही तो सवाल है, हाउ कैन वी टेक स्ट्रिंग का इन, वो कैसे लेंगे? देखें, कई तरीके हैं इसके, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नल टर्मिनेटेड बाइट स्ट्रिंग, तो जैसे ही नल करेक्टर आएगा तो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देन यू हैव टू काउंट के भी उसने कितने एक्चुअल, इसमें एक लूप चलाना पड़ता है टू फिगर आउट के
अगर ये कैरेक्टर एरे, ठीक है, स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे और ये नल टर्मिनेटेड बाइट स्ट्रिंग है, तो यू माइट वांट टू रन अ लूप कि वो 0 पोजीशन से स्टार्ट करे और वो 1 2 3 4 लेट्स से उसने 15 कैरेक्टर्स टाइप करे, तो फिर 15 कैरेक्टर्स के बाद जो है वो एक नल कैरेक्टर आएगा, तो जहाँ पे नल कैरेक्टर आ गया वही स्ट्रिंग की लेंथ होगी। सही है। तो उससे फिर आपको फिर लूप में जाकर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई लूप यहाँ तक चलो। अच्छा, अब ये जो अब्दुल रहमान ने क्या कहा है, ये सिर्फ जो डबल कोलन है ग्लोबल नहीं, नहीं ग्लोबल नहीं, एक लेवल बाहर, ये स्कोप रेजोल्यूशन है, एक लेवल बाहर के लिए। अच्छा फिर, अच्छा ये वाले जो सवाल हैं इसके अंदर वी हैव टू फिगर आउट कि यार ये जो इंक्रीमेंट है ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्ट है या प्री है। पोस्ट ऑपरेटर जो है वो पहले वैल्यू यूज करता है बाद में अपडेट करता है, और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले अपडेट करता है बाद में यूज करता है। इवन आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं डजेंट मैटर, ये ऐसी काम करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं इसके यहाँ पे, आई मीन लाइक आई मीन क्वेश्चन, ये हमने सवाल आई थिंक क्विज में भी पूछ चुके हैं, तो बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सेट फॉर योर फाइनल। अच्छा 16-3 के बाद 17-3 डिस्कस करना है, कुछ फाइल डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। वंस अगेन राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड, देखें यहाँ पर सवाल है राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये है कि हमें ये तो जाहिर है मुझे कंपाइलर में रन करना था तो मुझे सब लिखना था, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये लिखना होगा। और अगर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड के बजाय लिखा होता राइट अ प्रोग्राम, तो देन यू नीड टू राइट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड इंटीजर मेन वॉइड, सब लिखना पड़ता, इवन रिटर्न 0 भी लिखना पड़ता। ठीक है, तो हैज द सेम इफेक्ट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस थिंग, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को इससे रिप्लेस करें तो जाहिर है उसको मल्टीपल लाइंस में करेंगे। इसको हम रिवर्स में भी पूछ सकते हैं, रिवर्स से मुराद ये कि भाई ये ब्लॉक ऑफ कोड है, सही है, आप एक लाइन में इसकी रिप्लेसमेंट लिखें, देन यू हैव टू राइट इस लाइन कि भाई एक लाइन में ये काम हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो डिक्लेरेशन तो अलग लाइन में होती ही है और इनिशियलाइजेशन भी अलग लाइन में होती है, तो उसकी बात नहीं हो रही, असल काम जो है वो इन दो लाइंस में हो रहा है। तो भाई इन दो लाइंस को हम कैसे एक लाइन में लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट दिस थिंग 100 प्लस 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 एम, तो पहले एम की वैल्यू अपडेट हुई है और बाद में वो एम की वैल्यू 100 में ऐड होके एन को अपडेट किया है। अगर यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नीचे लिखा होता है इसके, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो प्लस प्लस एम के बजाय एम प्लस प्लस बन जाता। ठीक है, ताहा ने पूछा है वाई वी यूज इंक्लूड कॉनआईओ डॉट एच। देखो कॉनआईओ डॉट एच जो है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये अगर आप प्रिंट एफ और स्कैन यूज कर रहे हैं तो उसमें आप यूज करेंगे, लेकिन हम प्रिंट एफ स्कैन ये सी लैंग्वेज की चीजें उसको कहते हैं, और भी फंक्शन है इसके अंदर, वो हम यूज नहीं करते। हम यहाँ पे स्ट्रीम मॉडिफायर सी आउट और सी इन यूज करते हैं जो आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है, ये असल में आई स्ट्रीम की ड्राइव ऑब्जेक्ट्स है, तो हमें कोनायो डॉट एच की यहाँ जरूरत नहीं होती। अच्छा अहमद ने पूछा है लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ओओपी। भाई ओओपी का सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये अब लैब वाले टॉपिक में आ गया है। तो हाँ एक और इम्पोर्टेंट, चलो एक अच्छी बात आ गई अहमद की वजह से, उसमें देखो लैब के लिए जो आपका वाइवा है वो एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, आई थिंक वो नेक्स्ट वीक ही किसी टाइम पर है वो वाइवा, जब भी अनाउंस हो गया नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसमें उसकी प्रैक्टिस आप क्विज नंबर 1 से लेके 5 तक के सवाल से ही कीजिएगा, उसी से रिलेटेड या डेरिवेटिव सवाल उसके आएंगे। ठीक है, और ये जो आखिर की जो वीडियोस हैं जो लेक्चर नंबर कहाँ से शुरू हुई है, लेक्चर नंबर 31 से लेके मे बी 39 तक जो है, या 28 से लेके 39 तक जो है, ये सारी 50 मिनट की 3-3 वीडियोस हैं। तो ज्यादा एम्फेसिस आपकी जो है वो क्विज नंबर 1 से लेकर 5 तक होनी चाहिए, और जब आपको अगर टाइम बचे जो कि आपका बिल्कुल नहीं होगा तो उसमें फिर आप ये 50 मिनट की वीडियोस भी देख लीजिएगा। सही है। अच्छा फिर उसमें भी ये इसी तरह के क्विज जैसे सवाल होंगे। अच्छा फिर हम वापस आ जाते हैं, 17.3 हो गया, 17.4 देखते हैं। ये मैंने सारी फाइल्स अपडेट की हुई हैं। वंस अगेन राइट अ सिंगल सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, यार सवाल देख लो, सी प्लस प्लस सिंगल स्टेटमेंट कहा जा रहा है या ब्लॉक ऑफ कोड कहा जा रहा है, तो ये सब चीजें नहीं लिखनी होती। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू डू समथिंग, फिर ऑब्वियसली आपको करना पड़ता है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन के सम ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन इंक्रीमेंट्स वाई, तो देखें एक ही लाइन में सारे काम हो गए। इनिशियलाइजेशन जो है वो मैं एक और स्टेटमेंट में करूंगा, वो काउंट नहीं होता, बट ये वाली चीज जो है ये मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा इसके अंदर ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसको एक प्रॉपर वैल्यू से इनिशियलाइज कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17.4 के बाद 17.5, सेम थिंग रिपीटेड के सिंगल सी प्लस स्टेटमेंट दैट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू एंड देन एड्स टू द टोटल। तो ये भी हो सकता है कि भाई आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए एंड देन राइट यू आर आस्क्ड टू राइट ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखें टू डू दीस थिंग्स, तो आप दो स्टेटमेंट में काम करेंगे। अच्छा फिर
फिर उस हाँ, इसके अंदर सवाल है ये एक सेकंड बेटा, ये अच्छा एक सॉरी मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ, ये बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये यहाँ पे एनईडी के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कमिंग टू क्वेश्चंस, वाइवा गूगल फॉर्मेट में होंगे? जी जी, वाइवा गूगल फॉर्मेट में होंगे मोस्ट लाइकली। ठीक है, मोस्ट लाइकली हमारी कोशिश यही है, क्योंकि वो जो उन्होंने टाइम लिखा हुआ है ना, वो एक, अब यार वो अनऑफिशियली बता रहा हूँ, इट्स नॉट ऑफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे का कोई टाइम लिखा हुआ है, और उन्होंने कोई जो टाइम लिखा है 2 घंटे में 130 स्टूडेंट्स का करना है, विच इज पता नहीं 130 स्टूडेंट्स का कैसे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली गूगल पे ही होगा, जैसे आप क्विज दे रहे हो वैसे ही होगा, लेकिन उसका टाइम लिमिट लिमिटेड होगी। ठीक है, वो लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। डेट आपकी क्लास एडवाइजर अनाउंस करेंगे एग्जामिनेशन पोर्टल वगैरह पे जो आती है। ठीक है, वाइवा क्विज बेस्ड होगा या वर्बली? वाइवा वर्बली यार मुश्किल है। आई मीन अगर किसी से पूछना हुआ तो कहेंगे भाई माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लेंगे, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली अनलाइकली कि वो 250 स्टूडेंट्स के अंदर हम ये सब काम करें। वर्बली यार वो 2 घंटे में हो नहीं सकता, जो उन्होंने टाइम लिमिट दिया, अल्लाह जाने लोग क्या चाह रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली आपका उसी तरह का होगा जैसे आपके क्विज हो रहे हैं। Nasra in string reverse program is the compiler read the spaces. देखें space itself space bar, space bar एक proper ASCII कोड होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले, और वो वैलिड कोड होता है। जैसे अगर किसी ने नाम लिखा, फॉर एग्जांपल आपका जैसे नाम है, अगर वो कोई नाम लिखता है तो NASHRAH स्पेस बार PRVZ लिखता है, तो इसके अंदर स्पेस बार इटसेल्फ इज अ वैलिड ASCII कोड। ठीक है, नल कैरेक्टर को आपको ढूंढना है उसके अंदर, जो मेन थिंग है वो नल कैरेक्टर है। अच्छा, इट मीन देयर विल बी नो क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपी? नहीं भाई, फाइनल एग्जाम, अहमद ये फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो? क्या कहते हैं, फाइनल में नहीं, नो 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 नो, फाइनल में तो सिलेबस बता दिया ना भाई। फाइनल में जो सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर नंबर 30 तक है। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो हम अनाउंस करेंगे कि भाई ये चीज आप लोग देख कर आइएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये अटेंडेंस क्यों नहीं अपडेट हो रही? अच्छा, अब वापस आते हैं इसमें। अच्छा हाँ, अटेंडेंस में एक बात याद आई। आप लोग अपनी फिजिकल होंगे यार, फिजिकल होंगे फाइनल्स, क्या मतलब है इसका? एरियर फंक्शन टॉपिक्स इंक्लूडेड इन फाइनल, भाई फाइनल के बता दिया ना, लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर 30 देख लेना बस। ठीक है, उसके अलावा कुछ हुआ तो हम बता देंगे। ये क्या लिखा है जिब्रान? मोस्ट लाइकली ये फाइनल एग्जाम्स यहाँ होंगे, आपको एनईटी आना होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि शायद यूनिवर्सिटी खुल जाएगी प्रॉपर्ली और आपको आना पड़ेगा। अच्छा, अटेंडेंस के हवाले से अहम बात सुन लो, वो ये है कि अटेंडेंस की आप लोग चेक कर लेना। नहीं नहीं, हमारे तैमूरी हमारे इख्तियार में नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी कहेगी, आपको पेपर भी देना पड़ेगा। ये जैसे यूनिवर्सिटी कहेगी वैसे करेंगे, हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये सुन लो कि क्या बता रहे थे, हाँ अटेंडेंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर किसी के अटेंडेंस में मसला है मुझे वो फौरन बताए। ठीक है, अटेंडेंस आपकी 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अटेंडेंस में मसला है कि आप प्रेजेंट थे लेकिन क्लास में आपका उसका स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तो आप मुझे ईमेल कर दें कि भाई मैं इस क्लास में प्रेजेंट था और वो जो है क्या कहते हैं मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो और उसके वजह से मतलब कोई खुदा खाता किसी की अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, मतलब वो और प्रेजेंट था और उसकी, क्योंकि देखो यहाँ पे 114 शो कर रहा है और यहाँ पे ये 69 शो कर रहा है, ऑफ व्हाट? तो विच इज़ अनबिलीवेबल। तो ये जो है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर मसले करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको तुम लोग जाना नहीं, मैं इसको दोबारा लॉन्च करके फिर दोबारा मैं अटेंडेंस इसकी लूंगा। ठीक है, तो किसी के अटेंडेंस में मसला है, ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, कमिंग बैक टू, अब कौन सा कोड किया था हमने? हाँ, अच्छा इसके अंदर सवाल ये है कि you are asked to write a run a program that causes negative overflow of a variable of type short। तो short हमें पता है कि वो आई थिंक 2 बाइट्स का होता है, तो 2 बाइट्स में अगर वो अनसाइंड है तो वो 16 बिट 0 से 6536 चलता है, और अगर साइंड है तो -32768 से +32767 तक जाता है। तो ये चीज़ें जो है जब हमने बाइनरी नंबर्स पढ़े थे तो वहाँ से रिलेटेड है। तो इसमें नेगेटिव ओवरफ्लो का मतलब ये है कि डेट विल, आप इसमें इतनी बड़ी वैल्यू
स्टोर करें कि वो जो है मतलब जाहिर है वो साइकिल अप होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो 0 से लेके, या मतलब जैसे यहाँ पे 0 है फिर वो 10,000 चला गया, फिर उसके बाद जो है वो यानी कि आप सॉरी 0 है फिर -10,000 कर लिया, फिर अगेन -10,000 किया, थर्ड टाइम -10,000 किया तो -30,000 पे आ गया, फिर अगेन -10,000 किया तो ये -40,000 पे नहीं जाएगा, अब ये पॉजिटिव वैल्यूज पे आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने रन करके दिखाया था। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। 17-6 के बाद हमारे पास जो डिस्कस करना है वो 17-9 है। अच्छा एक बात रह गई भाई, इसमें किसी ने कहा था, क्या कहा था कि मिड टर्म में अटेंडेंस नहीं, आप ईमेल कर दें अगर स्क्रीनशॉट नहीं है। एक मिनट सर यार, एक मिनट, किसी ने कहा था कि नबील अहमद ने कहा था बैकलॉग की अटेंडेंस अपलोड नहीं हुई है सर। भाई बैकलॉग की अटेंडेंस के लिए ये आपकी क्लास एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैकलॉग की अटेंडेंस एक अलग पेज पे आती है, वो पोर्टल पे नहीं आती। ठीक है, तो वो क्लास एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अटेंडेंस बताए आपको, आप उनसे पूछें कि भाई मेरी अटेंडेंस बताओ, वो अपने पोर्टल पे जाके एक खास पेज होता है वो डाउनलोड करेंगे जिसमें से बैकलॉग स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, वो आपको दी जाएगी और उसमें आप चेक करें कि भाई मेरी 75% बन भी रही है कि नहीं हो रही। अटेंडेंस अपलोड मेरे पास तो आ रही है, आपको दिखाया तो ऑनलाइन नहीं, ये मेरे अटेंडेंस का इश्यू आ रहा है। अली अवान भाई मुझे बताओ क्या इशू है, कितनी क्लासेस आपने ली हैं और कैसे बताएं सर? ईमेल कर, हाँ बिल्कुल मुझे ईमेल करो और मुझे बताओ कि कौन से दिन की अटेंडेंस से मसला आया है। यानी कि हमारी सारी क्लासेस अल्लाह का शुक्र है कोई भी नई छुट्टी है, मेरे ख्याल में कोई भी छुट्टी नहीं आई है अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें तुम लोग देख लेना, ट्यूसडे की डेट होगी तो तुम देख लेना ट्यूसडे में मिड टर्म वाला हफ्ते में तो क्लास नहीं हुई थी, उसके अलावा आप देख लेना कि कौन सी क्लास में मेरी अटेंडेंस, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी है तो मुझे बताएं। ठीक है, अतरुल्लाह ने कहा है मेरी क्लास मिसिंग आ रही है। भाई कौन सी क्लास है, मुझे उसकी डेट बताओ, टाइम डेट बताओ, टाइम तो खैर 9 से 9:40 ही होता है, तो वो मुझे आप बताएं। ठीक है, और बैकलॉग भाई वो मिस क्या नाम है, मिस बीनेश से रब्ता करें और मिस बीनेश आपको, और ये आप उनके पीछे पढ़ना पड़ेगा, वो बताएं, वरना अगर आपको अटेंडेंस बाद में पता चले कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई तो आपकी एडमिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड ये कोई लोग थोड़ी इशू करते हैं, तो कंप्यूटर जनरेटेड आता है। भाई ये अहमद आसिफ भाई, ये मिस बीनिश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू हैव टू ड्रॉप एन ईमेल और आप उनसे या तो खुदा के मिल लें या फिर उनसे आप ईमेल करें या उनसे फोन पे बात करें या अपने क्लास एडवाइजर क्लास सीआर से कहें। स्क्रीनशॉट नहीं है कोई बात नहीं, मुझे बता दो कहीं इस क्लास में था। और हमारे पास ना एक और तरीके से हम चेक करते हैं कि वो आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी है कि नहीं देखी, तो वो उससे हम उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दें कि भाई मैं इस क्लास में था और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी हुई है तो दैट्स ओके। क्लासरूम में भेजें या आपकी नहीं, मेरी आईडी पर ईमेल करें यार, और क्लासरूम में तो बहुत फिर रश लग जाएगा। अच्छा, जबकि सारे लेक्चर अटेंड किए, क्विज़ेज में मिड से अंदाजा लग, क्या क्या यार, ये मोहम्मद अली अमानी समझ नहीं आया क्या? योर ईमेल यार, ईमेल इज गुड क्वेश्चन। माय ईमेल इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, mu sajid@cloud.ned.uit.pk। ठीक है, ये मेरी ईमेल है। आप उसमें टाइटल में आप ये जरूर लिखिएगा, इस तरह लिखना, अटेंडेंस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह लिख के मुझे सब्जेक्ट में लिखना, क्योंकि उसमें हजारों ईमेल्स आती हैं, तो अटेंडेंस प्रॉब्लम वाली जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो कि खुदा खासा हमने क्लास ली है और आपको एडमिट कार्ड ना ले, वो बहुत गौर करते हैं। क्या लिखा है नूरुल्लाह सर, बाकी बैकलॉग की आ रही है बस सीपी की नहीं आ रही यार, दिस इज अमेजिंग। क्यों नहीं आ रही? इट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं तो सारी अटेंडेंस एज इट इज ही भेजता हूँ। देखो ये आ रही है। अच्छा ये आ रही, जल्दी से ये सवाल देख लो, इसके अंदर जो है लेक्चर नंबर 17, या माइक्रोफोन किसने खोल लिया? ठीक है, यहाँ पे माइक्रोफोन आप बंद रखें और एक मिनट। ओके, कमिंग बैक टू सर, मैं क्विज में मैं पेयर होता हूँ लेकिन मेरी अटेंडेंस, तो मुझे लिख के भेजो ये भाई, ये तुम लोग अभी तक 13वें हफ्ते तक बैठ के क्या कर रहे हो? उसमें जल्दी से मुझे इसकी ईमेल सेंड करो, अपना नाम, रोल नंबर, अपना क्लाउड आईडी, या मुझे लिख के भेजें। और जो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन ऑब्वियसली बी है लेकिन लिखें क्योंकि हम और भी सेक्शंस को देख रहे हैं, तो वो सब आप लिखें, पूरी डिटेल लिखें और एग्जैक्ट लिखें। 0 अटेंडेंस तो इस पे तो एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं भाई, वो तो 75% से कम है, 1-2 क्लासेस का मसला है, वो ये इतनी सारी कैसे मसला आ गया? पहले बताओ थे, अभी फौरन मुझे ईमेल करो। अच्छा खैर, अच्छा अब ये इस सवाल को देख लें, 17-9 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट रन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर प्रोग्राम, और इसमें जो है वो राउंड ऑफ एरर आ रहा था। ठीक है, तो आप फ्लोट से करें या डबल से करें, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें आप जो है वो
कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी तो क्या करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज अगर सेक्शन ए वालों ने भी पढ़ ली है तो इसमें कॉम्प्लेक्स का सवाल आ सकता है, ये मैंने एक लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन अगर सेक्शन ए वालों ने कॉम्प्लेक्स हेडर फाइल नहीं पढ़ी है तो फिर ये सिंपल लीनियर उसमें आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स आंसर आता है तो वो नॉट अ नंबर शो करेगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, अभी ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद जल्दी से बेटा टाइम कम होता जा रहा है, एंड 79 के बाद बस ये आखिरी 17 10 डिस्कस कर लेते हैं। 10 में क्या था, ये वही चीज है जैसे वहाँ पे न्यूमरिक ओवरफ्लो हो रहा था जो इंटीजर टाइप थी, तो हमारे पास जो है वो फ्लोट में जो है और या डबल टाइप के अंदर तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में अगर आपको नॉट अ नंबर करना है या डिवाइड बाय जीरो करना है तो वो या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो वो आप इसको इस प्रोग्राम से कर सकते हैं। जैसे स्टोर अ वेरी लार्ज इनफ वैल्यू तो उससे वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। फर्क ये होता है कि इन्फिनिटी और इंटीजर टाइप्स में, फ्लोट और इंटीजर टाइप्स में फर्क ये होता है कि फ्लोट जो है वो इन्फिनिटी पे जाके स्टक हो जाता है, उसके बाद वो आगे पीछे साइकिल नहीं करता। इंटीजर टाइप्स चाहे वो शॉर्ट हो, इंटीजर हो, लॉन्ग इंटीजर हो या लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर हो, लॉन्ग इंटीजर और इंटीजर सी प्लस में सेम है, या लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर हो, वो साइकिल करता रहता है, ठीक है, वो 0 0 0 होगा, फिर दोबारा नेगेटिव वैल्यूज पे जाएगा, फिर वो नेगेटिव को पूरा कवर करेगा, फिर पॉजिटिव में साइकिल करता रहेगा। फ्लोट या डबल या लॉन्ग डबल सारे के सारे अगर एक दफा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे या नॉट अ नंबर पे आ गए तो फिर वो नॉट अ नंबर का मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स, तो फिर वो उसमें क्या कहते हैं, उधर जो है वो फिर वहां पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो डोंट गो एनीवेयर, मैं एक दफा अटेंडेंस दोबारा लूंगा। एक मिनट, चैट में क्या लिखा हुआ है यार, देखो वही मैं कह रहा हूँ, अटेंडेंस का किसी का मसला है जस्ट ड्रॉप एन ईमेल कि भाई मैं इस क्लास में था, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है, या मेरा इंटरनेट का मसला यहाँ पे भी बेतहाशा है यार, इट्स अनबिलीवेबल, हर जगह इंटरनेट का मसला है, ठीक है। अभी डोंट गो एनीवेयर, आप लोग हैंग अप नहीं करें, और सब पता मैं किस eso yo le jilma मार के इंडस्ट्री से बंद कर